Good morning, friends. So today is our second class of Indian Contract Act. I hope you all enjoyed the last class for the Indian Contract Act and you understood all the concepts that we discussed in the previous class. Okay, before starting with what we will discuss today, let us just a review of what we had discussed in the previous class. In the previous class, we had talked about the contract, how the contract is made, what are the essentials of the valid contract, and what are the implications if the contract is not valid. Okay, let us just review it once more. A contract is made up of two ingredients we discussed in our previous class, that is agreement plus enforceability at law. Okay, what do you mean by agreement and what do you mean by enforceability at law? We already had discussed in the previous class, but let us now once again get a quick review. Agreement means anything. For example, if I say that Mr. A wants to purchase a land from Mr. B, and if he simply says, Mr. A, I want to purchase your land, then in that case, if Mr. B is not willing to sell any land of his, then will it be constituting an agreement? No. For an agreement, there must be an essential thing, that it should be in a written form. Although law does not say that it should be in written or in the oral form, but for better understanding between the parties and so that the parties do not arise into any conflict, it should be essential that your agreement is in the written form. Okay, when agreement and enforceability at law is done, it makes our contract. Then how is this agreement made? For agreement being made, there should be a promise that is backed by consideration. We discussed already how does this promise comes. For example, if I say to a shopkeeper that I want to purchase 10 kgs of rice from you, in that case I made an offer to the person, to the shopkeeper. Now if the shopkeeper is willing to sell his 10 kgs of rice to me at a price that was stipulated by me, then that will be acceptance. Elsewise, shopkeeper has full right to reject whatever I have offered or whatever I have proposed to that particular person. There is no binding force on the other party to accept whatever offer has been made by you. So he is at full liberty to discard whatever you have offered to him. Now in this case, if shopkeeper accepts to give me 10 kgs of the rice at the price that is stipulated by me, this means that my offer has been accepted by that particular person and I will fulfill whatever I have offered and the other person will fulfill whatever he has accepted. When offer and acceptance made, that makes our promise. Okay, let us just make a quick review. We said that there is a contract. This contract is made of two essential things, that is the agreement and enforceability by law. Now this agreement requires two important essentials, that is the promise as well as consideration. We will come back to what is consideration. Next, this promise is made up of two essential things, that is the offer as well as the acceptance. Okay, when offer and acceptance is there, it makes promise. When this promise is backed by consideration, most important thing is consideration should be lawful. Our consideration should be lawful. It should not be something that is prohibited by law. Because if in a contract there is something that is prohibited by law, that will not make a lawful consideration as well as not a valid contract. For example, if Mr. A says to Mr. B that I will give you rupees 10 lakh if you murder Mr. C. In this case, the consideration that is given by Mr. A to Mr. B is not valid, is not lawful, because murder is something that is prohibited by law and one should not do it. Therefore, the consideration involved here is unlawful. Whatever essential is required for a valid contract is that the consideration must be lawful. So promise backed by consideration makes it agreement, and when this agreement is enforceable by law, it makes a contract. I hope it is clear to all of you. Okay, now we'll talk about the types of contract, the new topic which we were to discuss today. Okay, when we come to types of contract, it is based on three bases.
First is validity or enforceability as discussed here. Second one is formation. Third is performance. For validity or enforceability, there are 5 types of contract. That is a valid contract, a void contract, a voidable contract, illegal agreement and unenforceable contracts. For formation, if we talk about, there are 4 types of contract. That is express contract, implied contract, quasi-contract and e-commerce contract. And when we talk about performance, there are 2 types of contract, that is executed contract and executory contract, which is also further bifurcated into unilateral and bilateral contracts. Okay, very simple. These all types of contracts are very simple. We'll discuss with a lot of examples and it will make your concept really clear. First, when we talk about validity, valid contract, we have been discussing it for a long time now, that what is a valid contract? Any contract that is having an agreement plus enforceability at law is a contract. So an agreement which is fulfilling all the essentials of a valid contract, that is agreement, that is free consent, that is lawful object, that is lawful consideration and that is not declared to be void. We've discussed what is void. Void means anything that is not acceptable from the beginning. For example, if I enter into a contract with an unsound person means a person who is not capable of taking decisions, a person who is insane, और जिसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कोई भी इंसान जो पागल है, जिसकी मानसिक स्थिति नहीं सही है, उसे हम यहाँ पे अनसाउंड माइंड का पर्सन कहते हैं. अगर मैं किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हूँ, दैट इज बट ऑब्वियस कि उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा वॉइड माना जाएगा, because law says unsound mind person is not in a position to take a valid decision, to decide what is right and what is wrong for that particular person. Therefore, to enter into a contract with an unsound mind person is not acceptable by law. That is declared to be void. Here we are talking about valid contracts. So for valid contract, what are the essential contracts? What are the essential points? First is agreement, then is free consent, then is lawful object, lawful consideration and anything that is not expressly declared to be void. When these ingredients are mixed up, it makes up a valid contract. Okay? Let us see the other one, that is a void contract. As discussed just now, what is a void contract? Any agreement which becomes void. Which becomes void means we cannot fulfill that contract. The contract is itself declared invalid by law, is known as void contract. Okay, so here it is, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be unenforceable. That means the law itself says कि ऐसा contract हो ही नहीं सकता. This is not fulfilling the essentials of a valid contract, and doing a contract which is not accepted by law makes it void. For example, if I enter into an agreement with a person to buy 10 kgs of wheat, and if the shopkeeper dies, then in that case my contract with that shopkeeper, can it be fulfilled at any case? No, because my contract was with the shopkeeper and not with any other of persons. If my contract mentioned that shopkeeper or his legal heirs or successors or assignees, then that contract can be enforceable and it will not be void. But if the contract specifically mentioned just the name of me and the shopkeeper, and in that case if the shopkeeper dies, then the contract cannot be enforced. Okay, let us see what our example is given by the book. It says that Mr. X agrees to write a book with the publisher. After a few days, X dies in an accident. See, here also it's the same example somewhat. It says that Mr. X wanted to get into an agreement with the publisher for writing the book,
Now after few days Mr. X dies in an accident. Here contract becomes void due to impossibility of performance of contract, because we cannot perform contract here. Now contract was between the publisher and Mr. X and not with any of the legal heirs, not with any of the successors, not with any of the signees of Mr. X. The party were only two, Mr. X and the publisher, and one of the party is died, is not in existence, is not alive. In that case, can the contract be enforced by law? No, it cannot be enforced by law, therefore making the entire contract void, because it was impossible to perform the contract. Now I hope it is clear. Okay, now coming to our third type of contract, which is voidable contract. What do you understand by voidable contract? It says that any contract which is in existence only till the will of the other party is known as voidable contract. For example, if I say that I want to get into agreement with the other person, knowing that the other person is not fit to get into agreement with me, in that case, like we'll take a simple example. Mr. A is agreeing to marry to Mr. B, Miss C, and in that case Miss C is not giving her consent in a free manner. So if they agree to marry, in that case Miss C has an option to enter into a contract or to repudiate the contract only at her will. Now Mr. A cannot force Miss C to enter into a contract basis on his manner. Okay, now let's see what the law says. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or other, is a voidable contract. Says the same? Okay. Now coming to distinction between a void contract and voidable contract. We have already discussed a void contract is a contract which is not enforceable at law. Law does not recognizes it because it does not contain the essentials of a valid contract. Means that contract is not recognized by law. Whereas a voidable contract is a contract which can be enforced only at the option of one party and not at the option of other party. Okay. Here is a tabular form representation of what is a void contract as well as what is a voidable contract. Okay. See, it says clear, a void contract ceases to be enforceable. मतलब कि void contract को हम law के नज़रों में enforceable बना ही नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी स्टार्टिंग ही गलत है. बिकॉज जिस तरीके से वो किया जा रहा था वो तरीका ही गलत है. वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को फुलफिल ही नहीं कर रहा था. इसीलिए हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता. एंड व्हेन वी से अबाउट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट सेज दैट अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल. वो वाला तो एनफोर्सेबल ही नहीं था, ये एनफोर्सेबल तो है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज. दैट मीन्स अगर पार्टी चाहेगी तो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, अगर पार्टी नहीं चाहेगी तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही खत्म हो जाएगा. मतलब सेकेंड पार्टी इज नॉट इन एनी पोजिशन टू बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. वो सिर्फ और सिर्फ जब तक उसकी कंसेंट इन्वॉल्व है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे. जब उनकी कंसेंट खत्म हो जाएगी या जब उन्हें लगेगा कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना या इस कॉन्ट्रैक्ट में बने रहना सही नहीं है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे. ओके, क्लियर है चीज. नेक्स्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉज करता है. कह रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन द लॉ. या तो लॉ चेंज हो गया या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए जो अब पार्टी के कंट्रोल में ही नहीं है. जैसे अभी हमने पढ़ा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जिसमें मिस्टर एक्स ने कहा था कि मैं आपके लिए बुक लिखूंगा, लेकिन अब मिस्टर एक्स ही नहीं रहे, मिस्टर एक्स जो है वो एक्सीडेंट में चले गए. इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया. इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है. दैट इज इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पार्टीज टू परफॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कह रहे इफ द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी इज नॉट फ्री. जैसे अभी एग्जांपल में क्या था, ए सी से मैरी करना चाहते हैं लेकिन सी की कंसेंट जो है यहाँ पे फ्री नहीं है. तो जब तक सी की कंसेंट रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में है.
अगर सी की कंसेंट नहीं होगी या सी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहेगी तो सी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी रेप्यूडेटेड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी सेट असाइड बाय द कंसेंट ऑफ वन पार्टी, दैट इज वन पार्टी इज अनविलिंग टू एंटर इनटू एनी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट विद यू, उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो भाई लॉ नहीं, उसको अनएनफोर्सेबल कर दिया है तो उसको तो हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। वेयर एज जब हम बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, तो भैया अगर पार्टी को लगेगा कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर रह सकते हैं या उसको परफॉर्म कर सकते हैं तो वो करेंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं हम फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रह सकते तो वो उसको खत्म कर देंगे। ओके, फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई भी राइट नहीं देता पार्टी को, बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्ट चला ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के इम्प्लीकेशंस ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम खत्म हो चुका है, तो कोई पार्टी को राइट्स ग्रांट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। whereas वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब किसी भी पार्टी को लगेगा कि वो अग्रीव्ड है और उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, वो उसको छोड़ सकता है। इन दैट केस पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है उसके पास राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सके, रेसिंड कर सके। रेसिंड मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सके, उस कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना कर सके। आई होप इट इज क्लियर बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो ही नहीं सकता, बिकॉज लॉ सेज या तो सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं जो पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड हो गई हैं, या कुछ लॉज ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो ही नहीं सकता है। तो समथिंग which you can say is impossible to perform now becomes a void contract, whereas a voidable contract is a contract which can be performed but it is up to the will of the party, they want to perform or they want to not perform, that is a voidable contract. Okay, so we've discussed three types of contracts abhi tak ke. First is void contract, other one is voidable contract, and is the first one that we've discussed is valid contract. Okay, now we'll come to an illegal contract. As the name suggests, illegal. What do you understand by illegal? It says that any contract which the law forbids, which the law says कि ये हमारे guidelines के against है, something which is not considered good, which has not a lawful consideration, a lawful object, is an illegal activity here. ठीक है, तो इसे हम ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं, इलीगल अग्रीमेंट्स कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि तुम मुझे ड्रग्स लाके दो, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड इन द आईज ऑफ द लॉ। ओके, तुम मुझे ड्रग्स लाके दो, उसके बदले में मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। Here the contract is based upon an unlawful thing. Here the contract is based upon unlawful thing. So something which is unlawful, something which the law does not recognize as good, or which the law forbids, which the law considers is not good in the public interest, in the social interest. That type of contract is known as an illegal contract. Okay, clear here? See. Now we come to a void contract. Difference between a void contract and an illegal agreement. Okay, see, a void agreement is not necessarily illegal. अभी जब मिस्टर एक्स की बात हो रही थी और पब्लिशर की बात हो रही थी, तो मिस्टर एक्स जो है उनकी डेथ हो गई। भाई उन्होंने तो जो अग्रीमेंट किया था वो एनफोर्स नहीं हो सकता क्योंकि मिस्टर एक्स है नहीं, लेकिन क्या कुछ अनलॉफुल इन्वॉल्व था वहाँ पे? कुछ अनलॉफुल नहीं था, बिकॉज यहाँ पे मिस्टर एक्स का जो एक्सीडेंट है वो उनकी खुद की वजह से हुआ था, इसमें कहीं पब्लिशर का तो हाथ था नहीं। यहाँ पे मिस्टर पब्लिशर जो थे वो एक्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बिकॉज एक्स की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी एंड देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिशर। कोई भी लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं था। बट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स क्यों नहीं हो सका? बिकॉज पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट वर नॉट इन एग्जिस्टेंस। Therefore, void agreements illegal नहीं होते हैं, हमेशा illegal नहीं होते हैं, लेकिन illegal agreements हमेशा void होते हैं, because वो law उसे enforceable नहीं कर सकता। क्योंकि void का ही मतलब हमने पढ़ा ना, any agreement which is unenforceable by law,
मतलब लॉ कहता है कि नहीं, हम इसे नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, हम इसे नहीं एनफोर्स करा सकते, नहीं पूरा करा सकते। तो इसीलिए इलीगल अग्रीमेंट तो क्या है, ये अनएनफोर्सेबल है, इसलिए तो पूरी तरीके से वॉइड है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे वॉइड अग्रीमेंट्स आपके इलीगल ही हों। ओके, वॉइड अग्रीमेंट्स लॉ फॉरबिड नहीं करता, क्योंकि वॉइड वो अभी नहीं है, वो कुछ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ लॉस इन हो जाते हैं, कुछ इनकॉम्पिटेंसीज अराइज करती हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। लेकिन लॉ उन्हें फॉरबिड नहीं करता, क्योंकि जब बने थे उस टाइम पे वो क्या थे, वो चल रहे थे, वो उस टाइम पे गलत नहीं थे। ठीक है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इलीगल अग्रीमेंट्स हैं, वो तो पूरी तरीके से क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है। Then void agreement में parties are not liable for any punishment. Why are they not liable? अब X मर गया, ठीक है, जिसकी वजह से अपना कॉन्ट्रैक्ट वो पब्लिशर के साथ पूरा नहीं कर पाया, तो क्या यहाँ पे X की गलती थी? क्या X ने ये काम जानबूझ के किया? नहीं ना, यहाँ X ने कोई काम जानबूझ के तो किया नहीं। और अगर पनिशमेंट दोगे भी तो किसको दोगे? X तो चला गया ना, यहाँ पे पब्लिशर बचा। पब्लिशर किसके अगेंस्ट जा सकता था? X के अगेंस्ट जा सकता था, ओनली टू द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या इस केस में पब्लिशर X की फैमिली तक जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किसके बीच में हुआ था? पब्लिशर एंड X के बीच में हुआ था, एंड नॉट बिटवीन पब्लिशर एंड फैमिली ऑफ X। ओके, तो यहाँ पे अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को स्यू करती है तो वो तो तभी कर पाएगी ना जब दूसरी पार्टी एग्जिस्टेंस में ही है। दूसरी पार्टी तो यहाँ एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, तो स्यू करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए वॉइड अग्रीमेंट्स जो हैं वो पनिशेबल नहीं होते हैं। लेकिन इलीगल अग्रीमेंट, क्योंकि उनका सब्सटेंस ही इलीगल होता है, उनकी ऑब्जेक्ट, उनका कंसिडरेशन ही इलीगल होता है, तो यहाँ पे दे आर लायबल टू पनिशमेंट। सो इट सेज parties to the illegal agreement are liable for punishment. Okay, then when we talk about void contract, it's not necessary that agreements कोलेटरल टू द वॉइड अग्रीमेंट्स वो भी वॉइड हो जाएं। ठीक है, हो सकता है वो वैलिड हो। अगर एक चीज से बन के दूसरी चीज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने बोला कि हम मिस्टर ए से शादी करेंगे अगर वो मिस्टर सी को मार देता है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ और चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, तो वो यहाँ पे वॉइड नहीं हो जाएगी। जैसे मिस्टर ए को मिस्टर बी को एक लोन सैंक्शन करा के देना था, अब लोन तो उससे रिलेटेड नहीं है ना, लोन का कंटेंट अलग है, लेकिन उनकी जो रिलेशन है पार्टीज की वो लोन की वजह से अराइज हुई। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी तरीके से फुलफिल, मतलब अगर एक चीज़ दो तीन चीज़ों से मिल के बनी है और अगर उसमें सेकेंड चीज़ खराब है तो दैट डज नॉट मीन्स कि फर्स्ट चीज़ भी खराब हो जाए। भाई फर्स्ट चीज़ ठीक थी, वो पूरी तरीके से परफॉर्म हुई, वो वैलिड है। जब हम बात करते हैं सेकेंड चीज़ की, वो गलत थी, वो परफॉर्म नहीं हो पाई, उसको वॉइड माना, उसको सेट असाइड कर दिया, बात खत्म। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट की बात करें तो इलीगल तो पूरी तरीके से गलत होता है, उसके लिए किए गई सारी चीज़ें क्या होती हैं, इलीगल ही होती है। मतलब अगर मैंने किसी का मर्डर करने के लिए अगर गन खरीदी है, या मैंने नाइफ खरीदा है, या मैंने उसके लिए कोई ऐसी पॉइजनस चीज़ खरीदी है या हजार्डस सब्सटेंस खरीदा है, वो गलत है। अगर मैं उसके लिए कुछ ऐसा सेटअप क्रिएट कर रही हूँ जिसमें वो पार्टी आके फंसे, ठीक है, एंड देन जो है वो काम एंड अगर उस पार्टी को मैं फंसाऊँ किसी तरीके से, उसके लिए मैं किसी के साथ अग्रीमेंट मेंटर कर रही हूँ, वो गलत है। अल्टीमेटली मैं उस पार्टी का मर्डर कर देती हूँ, दैट इज ऑल्सो इलीगल। तो मतलब उस पार्टी का मर्डर करने के लिए मैंने यहाँ जितने भी काम करे, जितने भी लोगों से मैं अग्रीमेंट में एंटर हुई, मैंने जो भी अरेंजमेंट्स किए, वो सब पूरी तरीके से यहाँ पर क्या थे, इलीगल थे। इसीलिए जो अग्रीमेंट्स इलीगल अग्रीमेंट से रिलेटेड होते हैं वो तो पूरी तरीके से वॉइड होते हैं। लेकिन अगर हम वॉइड अग्रीमेंट्स की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि सारे अग्रीमेंट्स किए गए जो है वो क्या हो, हमारे वॉइड हो जाए। हो सकता है उसमें से कुछ जो हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं, उनको हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे अग्रीमेंट हुआ था पब्लिशर और एक्स के बीच में, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा होता कि मिस्टर एक्स का जो भाई है वो उसमें म्यूजिक कंपोज करेगा, इस केस में एक्स तो चला गया, ठीक है, लेकिन उसका भाई तो एग्जिस्टेंस में है, तो वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो सकता है ना, उसको परफॉर्म करेंगे। और दूसरा पब्लिशर जो है वह दूसरा जो फॉर एग्जांपल कंपोजर की बात करें, आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर हम कंपोजर की बात करें तो अब इस केस में अगर दूसरा कोई पर्सन वो अरेंज कर देता है तो वो भाई क्या करेगा, गाना गा देगा, कंपोजिंग ये कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़? ओके, यहाँ तक अभी हमारा लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बचा है वो कौन सा बचा है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब
वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स उसको हम परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अग्रीमेंट जो है वो जनरली स्टैम्प पेपर पे ही होने चाहिए, नॉट नेसेसरी कि स्टैम्प पेपर पे हो, लेकिन होने उसी पे ही चाहिए। इफ़ यू वांट कि कल के डेट पे कोई डिस्प्यूट अराइज अगर हो एंड अगर आप उस पर क्लेम लेना चाहते हैं या उसको आप कोर्ट के सामने रिकॉग्नाइजेबल बनाना चाहते हैं, या इफ़ यू वांट कि कोर्ट जो है आपको जस्टिस दिलाए उस मैटर पे, देन इट इज़ नेसेसरी कि आपका जो अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है वो आपका किस पे हो, स्टैम्प पेपर पे हो। विच रिक्वायर्स कि आप स्टैम्प पेपर खरीदिए, उस पर लिखिए, जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करें, जो विटनेसेस हैं वो साइन करें, एंड फर्दर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाए, नोटराइज्ड हो जाए, मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में वो इफेक्टिव मान लिया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट की नज़रों में उसको हम क्या कर सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं। इस केस में अगर विटनेस साइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या एनफोर्सेबल है? नहीं, क्योंकि विटनेस का साइन करना जरूरी है। लॉ सेज कि अगर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं तो इट इज नेसेसरी कि अगर वो साइन कर रही हैं तो उनको देखने वाला एक विटनेस भी उस पर साइन करे। एनी पर्सन हैज सीन कि हाँ एक्चुअली इन पर्सन उसने साइन किया ही है। तो यहाँ पे अगर किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं आगे उसको एनफोर्स करा पा रहे हैं, दैट इज नोन एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब कभी कभी ऐसा क्या होता है कि लिमिटेशंस होती है कि आपको ये काम इतने दिनों में ही करना है, अगर आप इतने दिनों में नहीं कर पाते हैं तो वो अनएनफोर्सेबल है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो अगर हम बात करें वैलिडिटी के हिसाब से तो हमने यहाँ पे 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है भाई? नंबर 1 हमने जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा है। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हमने कौन सा पढ़ा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड नंबर पे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड नंबर पे जो हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? वॉइडेबल। फोर्थ नंबर पे जो हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? आपका इलीगल। एंड फिफ्थ नंबर पे जो हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल। आई होप सारी चीजें क्लियर है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एग्रीमेंट, दैट इज an agreement, free consent, lawful object, lawful consideration and not declared to be void is known as a valid contract. Then void contract means any contract जिसका सब्सटेंस ही क्या हो गया है? अनएनफोर्सेबल हो गया है, दैट इज उसको परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, उसको परफॉर्मेंस जो है वो हम नहीं दे सकते ड्यू टू चेंजेस इन द लॉ और इनकॉम्पिटेंसीज ऑफ द पार्टीज, तो वो यहाँ पे हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। एनी कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी की कंसेंट पे ही टिका होता है, अपनी कंसेंट अगर वो पार्टी हटा दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, दैट इज नोन एज वॉइडेबल। ओके, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? कह रहे कॉन्ट्रैक्ट जिसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो, अनलॉफुल हो, वो हमारे यहाँ पे इलीगल है। देन अनएनफोर्सेबल मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कह रहे हैं। आई होप ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आपको, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी आपको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो समझ आ गए हैं। ओके, क्लियर है ये चीज़। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कौन सा है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्रेस मीन्स जो चीज़ें साफ साफ कह दी गई हैं उसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? एक्सप्रेस कहते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो साफ साफ वर्ड्स में या इन राइटिंग लिख दिया गया है, जिसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं एग्जिस्ट करती है, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस्ड है बाय वर्ड्स या इन राइटिंग उसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बहुत बढ़िया दिया इन्होंने कि A tells B on telephone that he offers to sell his house for ₹2 lakh and B in reply informs A that he accepts the offer। ये एक्सप्रेस है क्योंकि साफ साफ चीज़ें यहाँ पे बोल दी गई हैं। अभी हमने पढ़ा ना, वर्ड्स में या राइटिंग में, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ लिखित में ही हो, अगर बोल दी गई है क्लियरली तो भी वो चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। ओके, any contract which
either in the words or in the written form clearly says that both the parties are willing to perform their part, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, express contract कहते हैं. ओके अगर हम बात करें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कह रहे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड मतलब जिसे कहते हैं खुद ब खुद अज्यूम कर लिया जाता है कि अच्छा ये होगा तो ये होगा, ठीक है, तो दैट इज नोन एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे अगर हम एग्जांपल दें, रेलवे स्टेशन पे जो कुलीज होते हैं, ठीक है, अगर कुली ने आपसे बिना पूछे आपका बैग उठा लिया है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैडम हम आपको चलो वहां तक छोड़ आते हैं, इन दैट केस अगर आपने उसके चीज को डिनाई नहीं किया है, दैट इज यू आर एक्सेप्टिंग व्हाट द कुली इज डूइंग. ठीक है, पहले तो कुली ने आपसे पूछा नहीं ना आपने उसे बुलाया, लेकिन when one party did a part of contract and you did not deny it, आपने मना भी नहीं किया, दैट मीन्स कि कुली ने जो अपना काम किया, उसने आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह तक रख दिया. नाउ व्हाट इज योर पार्ट इज कि जब उसने सामान डिलीवर कर दिया आप उसको उसकी पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में करके जाएगा, भाई वो तो बिल्कुल फ्री में नहीं करेगा. एंड ऐसा भी नहीं है कि आपने जो है उससे काम करवा लिया अब आप पेमेंट नहीं करेंगे. तो इस केस में इट इज़ नेसेसरी कि अगर एक पार्टी खुद से कोई काम कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ इम्प्लाइड कि आपको भी अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. ओके, क्लियर है ये चीज़? वेरी गुड. Now next topic is tacit contract. What do you understand by tacit contract? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी पार्टी के कंडक्ट से समझ आ जाता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, दैट इज नोन एज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, देखो इसका बढ़िया एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है कि जब हम एटीएम से कैश विड्रॉ, अगर हम एटीएम की लाइन के बाहर खड़े हैं, ठीक है, that means clearly that we are willing to enter, we are willing to take, now when we are entering, we are standing before an ATM line, it is implied कि हम वहाँ पे कैश लेने के लिए ही खड़े होंगे. कोई बंदा वहाँ पे बिना फिजूल में या लोगों को देखने के लिए तो नहीं खड़ा होगा, दैट इज बट इम्प्लाइड. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हम करते हैं जो किसी पार्टी के कंडक्ट से विजिबल होता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, दैट इज नोन एज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, देखो एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है, when a cash is withdrawn by customer of a bank from the automatic teller machine, जिसको हम ATM मशीन भी कहते हैं, ठीक है, जैसे इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कि अगर हम ATM लाइन के बाहर खड़े हैं, दैट इज बट ऑब्वियस कि हम यहाँ पे कैश कलेक्ट करने आए हैं, हम अगर अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे तो ATM क्या करेगा, हमें उसके बदले में कैश प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीज का कंडक्ट क्या है, हमने यहाँ पे ATM मशीन में अपना डेबिट कार्ड डाला, उसमें हमने एक्शंस परफॉर्म करे. नाउ व्हाट इज ATM मशीन टू डू, वो हमें वो कैश देगा जितना हमने उनके उसके सिस्टम में फीड किया हुआ है. ठीक है, अब जैसे हम ये बोलें कि ऑक्शंस होते हैं, ऑक्शंस के केस में अगर यहाँ पे बिडिंग चल रही है, लोग अपना अपना जिसे कहते हैं बोली लगा रहे हैं, तो होता नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल एक लिमिट आ गई कि हाँ 10 लाख रुपए, ठीक है, तो जो बंदा ऑक्शन कर रहा होता है अगर वो 3 बारी हैमर जो है वो बीट कर देता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे आपकी ऑक्शन क्लोज हो गई है और जो अमाउंट है अब दैट इज पेबल बाय द पर्सन जिसने अपनी लास्ट बिड कोट करी थी. तो डूइंग एन एक्शन मतलब हैमर 3 बारी नीचे करने से इट इज इम्प्लाइड कि ऑक्शन क्या हो गई है, खत्म हो गई है. ठीक है, वैसे ही एटीएम में जब हम डेबिट कार्ड अंदर डाल रहे हैं एंड देन अमाउंट कलेक्ट करें, दैट इज इम्प्लाइड कि हम वो कलेक्ट करेंगे ही करेंगे. तो एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स कह रहे हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ऑटोमेटिकली बन गया है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ कि कोई पर्सन है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे जा रहा है, अगर उसको किसी का बैग मिल जाता है जिसका ओनर उसके सामने नहीं है, नाउ ही इज अंडर ऑब्लिगेशन कि अगर उसके पोजेशन में या उसके नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ आई है तो वो उसे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के पास डिलीवर करे, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बता कर आए कि ऐसे ऐसे कोई लॉस्ट या फिर ऐसे ऐसे कोई अबैंडन्ड चीज़ जो है वो पड़ी हुई थी स्टेशन पे, हो सकता है कि वो कुछ गलत हो उस बैग में, हो सकता है कि वो कोई किसी की जेन्युइन चीज़ हो जो वो छूट गई हो या एनीथिंग लाइक दैट.
तो यहाँ पे तो जो लॉस्ट चीज़ या स्टोलन गुड्स को ढूंढ लेता है तो ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन कि वो उसको डिलीवर करे जो उसका राइटफुल ओनर है। तो अब राइटफुल ओनर और उस पर्सन में कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, ना डिसाइड हुआ था कि भाई तुम मुझे दे के आना मेरा सामान, ऐसा कुछ तो था नहीं। जिसको मिला दैट पर्सन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन कि वो क्या करे, डिलीवर कर दे टू द पर्सन हु इज ऑल्सो द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। Okay, let us see the example. What does it say? Obligation of finder of lost good to return them to the true owner or liability of the person to whom money is paid under mistake to repay it back. For example, अगर मैंने किसी पर्सन को अमाउंट ट्रांसफर करना था पेटीएम या किसी भी अदर साइट पे एंड मैंने गलती से किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो जिसको गलती से रिसीव हो गया है क्या ही इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन कि वो मुझे वापस करे, बिकॉज आई वाज नॉट सपोज्ड टू मेक पेमेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इस केस में जिसको भी गलत पेमेंट हो गई है या जो मेरे साथ एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, अगर उसके साथ मैं क्या कहते हैं फॉर एनी एग्जांपल ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, तो दैट पर्सन इज अंडर लायबिलिटी कि वो मुझे वो चीज़ वापस करे। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को जो पहले से बने नहीं होते हैं लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, उनको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ओके, एंड लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से है हमारी, ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बाय 2 और मोर पार्टीज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। भाई आज के टाइम पे तो देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो एंटर करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की वजह से ही करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द पार्टीज कि वो बार बार ही क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टी कानपुर में है और दूसरी पार्टी दिल्ली में है तो इट विल नॉट बी नेसेसरी कि भैया वो स्पेशली दिल्ली से कानपुर आएँ या कानपुर वाले स्पेशली दिल्ली जाएं। ठीक है, तो अगर वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन से या साइबर मीन से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो इट इज़ टोटली वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखा, मैंने अपना साइन किया, मैंने स्कैन करके दूसरी पार्टी को भेज दिया, दूसरी पार्टी ने क्या किया, वहाँ पे प्रिंट आउट निकाला, उन्होंने अपना साइन करके मुझे वापस कर दिया। तो इस केस में हमने इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट, वी वर नॉट प्रेजेंट इन पर्सन, वी वर नॉट देयर इन पर्सन बट वी डिड इट थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम ईमेल पे किसी को अपना कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं एंड दैट पर्सन इज एक्सेप्टिंग माय डॉक्यूमेंट, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, so here on the basis of formation we discussed 5 types of contract here. Number 1 was express contract, next was implied contract, then quasi contract, e contract and tacit contract. Okay, I hope all the contracts are clear to you. Okay, सबसे पहली बात हमने किसके बारे में पढ़ा था, वैलिडिटी के बेसिस पे 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। कौन कौन से थे, वॉइड, सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, इनवैलिड, वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था। अब अगर हम बात करें फॉर्मेशन की तो हम लोग ने यहाँ पे पढ़े एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, क्लियर टू यू। अब हम फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे कौन सा है, 2 तरीके के हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़े थे ना कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम 2 तरीके के पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। ओके, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, कह रहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुका है, इन द पास्ट जो हो चुका है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेड, या जिसके लिए जो फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा था कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस व्हेन द एक्ट इज डन, इट इज ऑलरेडी डन और एग्जीक्यूटेड, या जो फोरबियरेंस इन्वॉल्व थी वो हो चुकी है, वो रिकॉर्ड में आ चुकी है, ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखो इन्होंने क्या दिया कि अगर कोई ग्रोसर जो है वो शुगर सेल कर रहा है ऑन कैश पेमेंट, तो इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाटएवर दे विश टू डू इन अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने उसको पेमेंट करी, उसने हमें शुगर सेल कर दी, दोनों ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सेज व्हेन आइदर वन और बोथ द पार्टीज आर स्टिल liable to perform their part of the contract, that is known as executory contract. Okay,
Here, executory contracts are divided into two parts. One is unilateral and one is bilateral. Unilateral says when one party has completed his part and the other person's part, your obligation is still pending. That is known as unilateral contracts. Bilateral contract says when both the parties are under an obligation to perform their part of the contract, which means neither party has done whatever they were bound to do under a contract. That is known as a bilateral contract. Okay, so executed contract says दोनों पार्टी ने अपना काम कर दिया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में करना था उन्होंने फुलफिल कर दिया है. दैट इज एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एक्सिक्यूटरी सेज या तो एक या दोनों पार्टीज आर का कॉन्ट्रैक्ट जो है या जो उन्होंने काम करना था उस कॉन्ट्रैक्ट में वो अभी पेंडिंग है. दैट इज एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. जब एक ने अपना काम कर लिया है और दूसरे का पेंडिंग है तो यूनिलेटरल है. अगर दोनों का जो काम था वो दोनों पेंडिंग है तो यहाँ पर वो क्या चीज़ है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, क्लियर. एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग यूनिलेटरल के. A advertises of our ward of 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation. अब B ने तो अपना काम कर दिया, उसने M ने कहा था जो उसको ढूंढ के लाएगा उसको 5,000 रुपये मिलेंगे. B ने ढूंढ दिया, B ने अपना काम कर दिया. नाउ M इज अंडर ऑब्लिगेशन कि वो क्या करे, वो अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज जो 5,000 उसे पे करने थे वो उसे पे करे. इन दिस केस B ने काम कर दिया, वन पार्टी ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, M का काम अभी पेंडिंग है. दैट इज नोन एज अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टीज assignment your work is done whereas the other person's is still pending. Okay, and when we talk about bilateral contract, यहाँ तो दोनों पार्टी की ही obligations क्या थी, अभी पेंडिंग थी. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका. A promises to sell his plot to B for rupees 1 lakh cash down, but B pays only 25,000. A ने कहा कि मैं अपना प्लॉट सेल करूंगा 1 लाख रुपए का B को. B ने भी उसके बदले में सिर्फ अभी 25,000 दिए एज एन अर्नेस्ट मनी. अर्नेस्ट मनी मतलब जिसको हम लोग एडवांस भी कहते हैं. ठीक है, and promises to pay balance by next Sunday. On the other hand, A gives the possession of a plot to B and promises to execute a sales deed. A ने भी possession दे दिया लेकिन sales deed execute नहीं करी. तो यहाँ पे देखो B का जो काम था पूरा 1 लाख देने का वो भी अभी पेंडिंग है और जो A का काम था पूरी तरीके से possession डिलीवर करने का B को by signing the sales deed वो भी अभी पेंडिंग है. When both the parties, यहाँ दोनों पार्टीज का काम क्या है, अभी पेंडिंग है. दोनों ने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है, पूरा जो वर्क था जो कॉन्ट्रैक्ट में करना चाहिए था उसे परफॉर्म नहीं किया है. Therefore, this contract is known as a bilateral contract. Okay, so we have discussed 3 types of contract here, 3 bases of contract basically. सबसे पहली बात हम लोग ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे किसके बेसिस पे. Let us give a quick review. Yeah, here. सबसे पहली बात हम लोगों ने वैलिडिटी के हिसाब से पढ़े थे 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट. आई होप इनमें से किसी में भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. वैलिड, वॉइड, voidable, illegal, unenforceable. देन हमने फॉर्मेशन के बेसिस पे पढ़े थे. यहाँ 4 दिए हैं, हम 5वां अपनी तरफ से यहाँ पे जोड़ देते हैं. कौन सा भैया, हमारा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़ा था. ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड, क्वॉसी, ई-कॉम एंड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. देन परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोगों ने 2 तरीके के पढ़े थे. एक था एग्जीक्यूटेड जो हो चुका है जहाँ दोनों पार्टीज अपना काम कर चुकी हैं, और एग्जीक्यूटरी जहाँ एक ने, एग्जीक्यूटरी मतलब जिसमें एक या दोनों पार्टीज का काम अभी पेंडिंग है. यूनिलेटरल के केस में क्या है, 2 पार्टीज है ए बी, ए ने अपना काम कर दिया, बी का पेंडिंग है. बायलेटरल के कॉन्ट्रैक्ट में ए का भी पेंडिंग है और बी का भी पेंडिंग है. ठीक है, तो ये हमारा बायलेटरल है. वेयर एज एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ए ने जो काम करना था वो भी हो गया, बी ने जो काम करना था उसका वो भी हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. I hope the types of contract is clear to all of you. Now we'll proceed with our next concept, that is proposal या offer. बड़ा ही similar word है जो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आए थे. कैसे डिस्कस किया था हम लोग ने, एक बार फिर से याद कर लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट किससे बना है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. अग्रीमेंट किससे बना है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन. प्रॉमिस किससे बना है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस.
तो ये जो ऑफर की बात आ रही है वो हमारा ये वाला ऑफर है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है भाई, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ऑफर का मतलब वैसे तो हम एग्जाम्पल से समझ चुके थे, लेकिन आप बुक से भी देख लेते हैं कि बुक वाले क्या बोलते हैं। When one person signifies to another his willingness to do, हम ये काम करना चाहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो पार्टीज हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है। बोर ना हो जाना मिस्टर ए और मिस्टर बी से, मिस्टर ए मिस्टर बी, ओके। मिस्टर ए ने कहा कि मैं अपना लैंड जो हूँ, सॉरी मिस्टर बी से कहा कि मैं आपका लैंड जो हूँ वो खरीदना चाहता हूँ, कितने रुपए में, 25 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन देखिए आप लोग, ये क्या कह रहे हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू। ए ने बताया मैं आपका लैंड 25 लाख का खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एब्सटेन मतलब मना कर दिया कि मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है। ये तो पहला काम था हमारा कि हाँ मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा मैं आपका लैंड खरीदना चाहता हूँ, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब क्या है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा तुम्हारे कहने पे अगर तुम बोलो तो मैं मिस्टर सी का जो लैंड है वो नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर ए एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, जिससे मिस्टर बी खुश हो जाएगा और मिस्टर बी का जो अग्रीमेंट है मिस्टर ए के साथ पूरा हो जाएगा, या जो मिस्टर बी ने कहा था, ठीक है, मिस्टर ए को कि हाँ मैं तुम्हें अपना लैंड दूंगा, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू डू एन एक्ट और सब्सिस्टेंस, ही इज सेड टू हैव मेक अ प्रपोजल। तो दो बातें यहाँ पे, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो भी वो एक ऑफर है, अगर आप उस काम को करने से डिनाई कर रहे हैं दूसरे के खातिर ताकि उसकी कंसेंट आपको मिल जाए, उसकी आपको असेंट मिल जाए, उसकी विलिंगनेस आपके पास आ जाए, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑफर। तो यहाँ ऑफर में दो बातें हैं कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ या मैं काम करने से डिनाई कर रही हूँ, और दोनों का पर्पस क्या है, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द सेकेंड पार्टी, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, तो वो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, ऑफर बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, ऑफर। आई होप इट इज क्लियर, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल या ऑफर, तो क्या जरूरी है इसमें, भाई जो ऑफर दे रहा है वो कौन है, ऑफरर है, या प्रपोजल दे रहा है वो क्या है, प्रपोजर है, ठीक है। दो ही बातें हैं, हम ऑफरर प्रपोजर, और दूसरी पार्टी क्या है, ऑफरी या प्रपोजी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर कौन दे रहा था, मिस्टर ए, तो मिस्टर ए हमारे यहाँ पर क्या है, ऑफरर है, हमारे मिस्टर ए यहाँ पर क्या है, ऑफरर, या जिसको हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, प्रोमिसर के नाम से जान सकते हैं, या जिनको हमको प्रपोजर के नाम से जान सकते हैं। तीनों में से कुछ भी आप इनको बोल सकते हैं, ऑफरर, प्रोमिसर या प्रपोजर, ठीक है। तो पर्सन मेकिंग द प्रपोजल या ऑफर वो कौन है, हमारा ऑफरर है। फिर फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ मिस्टर बी मैं तुम्हारा लैंड खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी विलिंगनेस दी ना कि हाँ मैं ये काम करना चाहती हूँ, आई एक्सप्रेस्ड माई विलिंगनेस कि आई वॉन्ट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अगर मैं एक्सप्रेसली स्टेट नहीं करूँगी, मैं अगर ये बोलूँ शायद मैं तुम्हारा लैंड खरीद लूँ, तो ये हमारा ऑफर तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मेरी विलिंगनेस नज़र नहीं आ रही है। इट इज़ लाइक आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि मैं एक्चुअली उसका लैंड खरीदना चाहती भी हूँ या फिर नहीं खरीदना चाहती। ओके, देखो एग्जाम्पल ये क्या कह रहे हैं, where A tells B that he desires to marry by end of 2017। अभी क्लियर नहीं है कि वो एक्चुअली उसे मैरी करेगा कि नहीं करेगा, अभी क्या बोल रहा है, सिर्फ वो डिजायर एक्सप्रेस कर रहा है कि yes I want to marry you by the end of 2017। here the consent, here the offer that is made by Mr. A, यहाँ पे ऑफर क्या है, क्लियर नहीं है, यहाँ अपनी विलिंगनेस वो एकदम क्लियर नहीं प्रपोज कर रहा है, तो ये मेरा ऑफर नहीं माना जाएगा। whereas अगर वो एक्सप्रेसली स्टेट कर देता मिस्टर बी आई वॉन्ट टू मैरी यू, यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ वो अपनी कंसेंट दे रहा है, पूरी तरीके से अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है कि वो ये काम करना चाहता है, तो ये मेरा एक वैलिड ऑफर है, ठीक है। तो एक वैलिड ऑफर के लिए देयर मस्ट बी द एक्चुअल विलिंगनेस ऑफ द पार्टी कि हाँ वो ये पर्टिकुलर काम करना चाहता है। ओके,
देन ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है भाई। पॉजिटिव मतलब क्या है, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ऑफर इज नॉट कि मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं अगर किसी काम को करने से मना भी कर देती हूँ, और उन दोनों का पर्पस क्या है, सेकंड पार्टी की विलिंगनेस लेना, सेकंड पार्टी की कंसेंट ऑब्टेन करना, ठीक है। अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं ये काम करूंगी, दैट इज इन अ पॉजिटिव मैनर, और ऑफर इन अ पॉजिटिव मैनर। अगर मैं उसको बोलूंगी कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी, दैट इज एन ऑफर इन अ नेगेटिव मैनर। तो ऑफर जो है वो आपका पॉजिटिव मैनर का भी हो सकता है, ऑफर आपका नेगेटिव मैनर का भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। A offers to sell his car to B for 3 lakh is an act of doing, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है वो काम परफॉर्म कर रहा है, वो पर्टिकुलर टास्क कर रहा है कि हाँ मैं कार आपको दूंगा 3 लाख रुपए की, ठीक है। A is making an offer to B. On the other hand, if when A asks B, ठीक है, after his car meets with an accident with B scooter not to go to the court, अगर मैंने किसी पार्टी को कहा कि तुम ये काम मत करना एंड वो उस चीज के लिए अग्री हो जाता है, तो वो क्या है मेरा ऑफर इन अ नेगेटिव मैनर। तो व्हेन आई अग्री टू डू अ पर्टिकुलर थिंग दैट इज इन अ पॉजिटिव मैनर, तो वो पॉजिटिव मैनर का ऑफर हो गया। एंड व्हेन आई डिनाई टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, वो भी दूसरी पार्टी की कंसिडरेशन पे, दैट इज एन ऑफर इन अ नेगेटिव मैनर। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी तक के 3 एसेंशियल्स कौन कौन से हम लोग ने ऑफर के पढ़ लिए। पहली बात तो वन हु इज मेकिंग एन ऑफर, उसको हम यहाँ पे ऑफरर बोलते हैं या प्रॉमिसर बोलते हैं। यहाँ पे जो ऑफर के लिए, वैलिड ऑफर के लिए क्या जरूरी है कि हम साफ साफ अपनी विलिंगनेस स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं या हम ये काम नहीं करेंगे आपके लिए, दैट इज नोन एज अ वैलिड ऑफर। देन ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इफ आई एम विलिंग टू डू एन एक्ट दैट इज पॉजिटिव। इफ आई एम एब्सटेनिंग टू डू एन एक्ट, एब्सटेनिंग मतलब कि हम मना कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम ये काम नहीं करेंगे, तो वो ऑफर क्या है, नेगेटिव मैनर का ऑफर है, ओके। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट क्या कहता है, विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट। अगर हम किसी भी पार्टी की विलिंगनेस, अगर हम अपना बता रहे हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो मेरा पर्पस क्या है, सेकंड पार्टी की कंसेंट लेना। भाई सिर्फ मेरा ऑफर देना सफिशिएंट थोड़ी है, जब तक सामने वाले की एक्सेप्टेंस नहीं आएगी मेरे पास, क्या वो मेरा कंप्लीट अग्रीमेंट बन पाएगा, नहीं। अग्रीमेंट के लिए हमें ऑफर भी चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस भी चाहिए। तो अगर मेरा ऑफर वैलिड नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस भी मेरे पास वैलिड नहीं आएगी, और मेरे ऑफर में ये चीज़ क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि हाँ मैं आपसे विलिंगनेस, मैं आपके लिए जो काम कर रही हूँ वो इसीलिए तो कर रही हूँ ताकि मैं आपकी कंसेंट ऑब्टेन कर सकूँ, ठीक है। तो 4th पॉइंट क्या कह रहा है कि विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन कंसेंट। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं हमें ऑफर के बारे में। ऑफर 2 चीज़ों से बना है, आइदर टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट, क्लियर। और दोनों का पर्पस क्या है, सेकंड पार्टी या जो हमारा एक्सेप्टेंस देने वाला पर्सन है उसकी कंसेंट ऑब्टेन करना, ठीक, क्लियर, ओके। Now when we talk about other topics says kinds of offer। kinds of offer मतलब हमने ऑफर तो दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम एक ही तरीके से ऑफर देते रहे। देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं। तो इन्होंने उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एक ऑफर कैसे बनता है एंड एक किसको दिया जाता है। उस बेसिस में 2 तरीके के ऑफर हैं। सबसे पहला ऑफर जो है वो कौन सा है, एक्सप्रेस ऑफर, और दूसरा जो ऑफर है हमारा कौन सा है, इम्प्लाइड ऑफर। ये किसके लिए है, किस तरीके से हमारे ऑफर दिए जा रहे हैं, हाउ मेड मीन्स किस तरीके से हमारे ऑफर जो है वो प्रपोज किए जा रहे हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेस ऑफर, सेकेंड वन इज इम्प्लाइड ऑफर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टू whom इट इज मेड, कि कौन सी पार्टी हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, तो हमारे पास 2 तरीके के ऑफर है, वन इज जनरल ऑफर एंड द अदर वन इज स्पेसिफिक ऑफर, ओके, क्लियर, ओके। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर देखो क्या कहता है, कोई भी ऑफर जो पूरी तरीके से हर चीज क्लियरली मेंशन करता है। जैसे अगर मैं ये चीज बोलूं कि आई एम विलिंग टू बाय अ कार फ्रॉम यू, दैट इज एन एक्सप्रेस ऑफर। मैंने यहाँ पे पूरी चीज क्लियर बोल दी कि मैं अपना ऑफर दे रही हूँ कि मैं आपसे कार खरीदना चाहती हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना बोल देती कि आई एम विलिंग टू बाय फ्रॉम यू, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है ना कि मैं आपसे क्या खरीदूंगी। भाई आपके पास तो बहुत सारे एसेट हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। तो व्हेन आई एम मेकिंग अ क्लियर ऑफर, व्हेन आई एम स्पेसिफाइंग कि हाँ मुझे आपसे कितना चाहिए है,
ठीक है, या क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक, तो दैट इज नोन एज एन एक्सप्रेस ऑफर। ओके, एंड इम्प्लाइड ऑफर सेज एन ऑफर जो कंडक्ट ऑफ द पार्टी से समझ आता है वो ऑटोमेटिकली नहीं दिया जाता, दैट इज बाय रिटन या क्लियरली वर्बल फॉर्म में नहीं दिया जाता, बट ओनली बाय द कंसेंट, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, उसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करते हैं अपने एक्सप्रेस ऑफर्स के बारे में एंड इम्प्लाइड ऑफर्स के बारे में। ओके, सो अभी हम जो है इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं अबाउट एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर्स। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। आज हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा है कि कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, देन हमने ऑफर्स के बारे में पढ़ा है क्या हमारे ऑफर्स होते हैं, एंड देन हमने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ ऑफर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में रिव्यू करेंगे। ओके